سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتا رمن کی جانب سے پیش کردہ 2025-26 کے بجٹ میں تلنگانہ کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا۔ یہ بات ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڈ نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ نرملا سیتا رمن جو کہ تیلگو کوڑالو یعنی تلنگانہ کی بہو ہے، وہ بھی تلنگانہ کے لیے محبت نہیں دکھا سکی۔ انہوں نے اس بات پر غم و غصہ ظاہر کیا کہ مرکزی بجٹ میں ریاست کے ساتھ سنگین ناانصافی کی گئی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی تلنگانہ کے ساتھ امتیاز برت رہی ہے اور سیاسی طور پر ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ بہار اسمبلی انتخابات قریب ہے، بی جے پی اپنے سیاسی فائدے کے لیے مرکزی بجٹ کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ تلنگانہ کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی قائدین کی طرف سے انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کا کیا ہوا۔ مہیش کمار گوڈ نے یہ بھی کہا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ پٹی وکرمارکا، وزراء، ارکان پارلیمان اور مرکزی وزراء اور وزیر اعظم سے مل کر تلنگانہ کے لیے متعدد مطالبات کیے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو تلنگانہ کے لیے ضروری تعاون فراہم کرنا چاہیے۔ کانگریس نے بجٹ 2025 پر سخت تنقید کی ہے، خاص طور پر بہار اور آندھرا پردیش کے حوالے سے۔ جے رام رمیش نے بہار کے لیے کی جانے والی اعلانات کو توجہ کا مرکز بنایا اور آندھرا پردیش کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اس سال کے آخر میں بہار میں انتخابات ہونے ہیں، اس لیے وہاں اعلانات کی بارش کی گئی ہے، لیکن آندھرا پردیش کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ منیش تیواری نے بھی اس پر سوال اٹھایا کہ یہ بجٹ بھارت کا تھا یا صرف بہار کا۔ وزیر فائنانس نے اپنے خطاب میں دوسرے ریاستوں کا ذکر نہیں کیا۔ بہار کے لیے بجٹ میں چند اہم اعلانات کیے گئے ہیں، جیسے مکھانا بورڈ کی تشکیل، پٹنہ ایئرپورٹ کی توسیع اور قومی غذائی ٹیکنالوجی ادارے کا قیام، جن سے ریاست کے کسانوں اور روزگار کے نئے مواقع کو فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ اللہ درگ منڈل ہیڈ کوارٹر میں آئی بی جنکشن پر زیر تعمیر عمارت پر کام کرتے ہوئے ایک مزدور کو کرنٹ لگ گیا۔ ریگوڈ منڈل کے آر اتیکیال کا رہنے والا 32 سالہ بال راجو عمارت پر کام کرتے ہوئے لائیو اوور ہیڈ برقی تاروں کے رابطے میں آیا۔ اس نے آخری سانس اس وقت لی جب اسے جوگی پیٹ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جوگی پیٹ کے سرکاری اسپتال لے جایا گیا۔ نارسنگی پولیس اسٹیشن علاقے میں آر ٹی سی بس میں سفر کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے بزرگ شخص کی المناک موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک شخص مہدی پٹنم سے شنکر پلی جاتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو گیا اور گر گیا۔ اس شخص کی شناخت 63 سالہ ایس بال راجو کے طور پر کی گئی، جو کہ رنگاریڈی ضلع کے جنواڑا گاؤں کا ایک کسان ہے۔ بس کے مسافروں اور عملے نے بزرگ شخص کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن طبی امداد پہنچانے تک اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ پولیس واقعے کے ارد گرد کے حالات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حکام نے متوفی کی شناخت ایس بالا راجو کے طور پر کی ہے اور موت کی وجہ کی تصدیق کے لیے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ متوفی کے اہل خانہ کو مطلع کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ یہ المناک واقعہ دل کے دورے کی صورت میں فوری طبی رد عمل کی اہمیت اور سفر کے دوران صحت کی ہنگامی صورتحال کے بارے میں آگاہی بڑھانے کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں تیندوے کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ یہ تیندوا جنگل سے انسانی آبادی میں آ گیا، جس سے عوام میں خوف پایا جاتا ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ ایک ہفتے کے دوران 4 جگہ یہ جنگلی جانور دیکھا گیا ہے۔ ضلع کے لاریڈی منڈل کے تیماپور گاؤں میں اچانک یہ تیندوا سڑک پر آ گیا۔ یہ تیندوا سڑک پر لیٹ گیا، جس کے نتیجے میں وہاں سے گزرنے والی گاڑیاں سڑک پر ہی روک دی گئیں۔ بعض افراد نے اس کی ویڈیوز اپنے سیل فون میں قید کر لی، جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ مقامی افراد نے بتایا کہ اس تیندوے نے قبل ازیں کھیت کے قریب ایک گائے پر حملہ کیا تھا۔ وہیں دوسری جانب نظام آباد رورل منڈل ملکاپور میں بھی تیندوا نظر آیا، جس کے نتیجے میں مقامی افراد میں خوف دیکھا گیا، جو اپنے گھروں سے نکلنے سے گریز کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی اطلاع محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو دی، جنہوں نے وہاں پہنچ کر اس کے پنجوں کے نشانات کا معائنہ کیا اور مقامی افراد کو مشورہ دیا کہ وہ چوکس رہیں۔ ذکیہ جعفری، جنہوں نے 2002 کے گجرات فسادات میں مبینہ بڑی سازش کی تحقیقات کے لیے قانونی جدوجہد کی، آج احمد آباد میں انتقال کر گئیں۔
वो कांग्रेस के साबिक MP एहसन जाफरी की बेवा थी, जो 2002 के फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में 68 दीगर अफराद के साथ कत्ल कर दिए गए थे। ज़किया जाफरी के इंतकाल पर तेस्ता सितलवाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ज़किया आपा, जो इंसानी हकूक़ के लिए एक हमदर्द रहनुमा थी, अभी 30 मिनट कबल दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी बसीरत अंगेज मौजूदगी को कौम, खानदान और दोस्तों और दुनिया भर के लोगों की तरफ से याद रखा जाएगा। तनवीर भाई, नशरी, दराइया आपा और उनके नवासे नवासियों के साथ हम खड़े हैं। ताकत और सुकून के साथ आराम करें, ज़किया आपा। हफ्ते की सुबह उंडावली मंडल के तहत पोलूरू टोल प्लाजा पर 2 प्राइवेट ट्रैवल बसों के ट्रक से टकराने से तकरीबन 40 मुसाफिर और एक ड्राइवर जख्मी हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब टाइलों से लदा ट्रक यूटर्न ले रहा था और CGR ट्रैवल की बस, जो हैदराबाद से कड़पा जा रही थी, ट्रक से टकरा गई। कुछ ही मिनटों में एक कावेरी प्राइवेट ट्रैवल बस, जो हैदराबाद से तिरुपति की तरफ जा रही थी, उसने पीछे से CGR बस को टक्कर मार दी। बस ड्राइवर और कावेरी बस में सवार 40 मुसाफिर जख्मी हो गए। ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और जख्मियों को करनूल के सरकारी जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक अहम इक़दाम में हाइड्रा हुकाम ने राजेंद्र नगर मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में दुर्गानगर चौराहे के इलाके में दुकानों को मिसमार करने का काम शुरू किया। ये मिसमारी हफ्ते की सुबह हुई। हाइड्रा के एहलकारों ने सड़क के किनारे की दुकानों को साफ किया, जिन्हें हुकाम ने गैर कानूनी समझा था। मुतासिरा ढांचे मसरूफ दुर्गानगर चौराहे के साथ वाक़ थे, जो राजेंद्र नगर मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद के इख्तियार में एक अहम इलाका है। इस अचानक कार्रवाई से मकामी रिहायशी और दुकानदारों में खौफ व राज फैल गया। ये इन्हदामी कार्रवाई हुकूमत की जानिब से तजावुज़ात से निपटने और बेहतर शहरी मनसूबाबंदी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए अवामी मकामात को खाली करने की जारी कोशिशों का एक हिस्सा है। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी राजेंद्र नगर में आवारा कुत्तों के हमले से एक 4 साला लड़की जख्मी हो गई। ये खौफनाक वाकया, जो CCTV में कैद हुआ, जुमा को उस वक्त पेश आया जब वो सड़क पर खेल रही थी। उसकी चीखें सुनकर मकामी लोग उसे बचाने के लिए पहुंच गए और कुत्तों को भगाकर उसकी जान बचाई। हफ्ते के रोज शहर के मदाफात नारसिंगी के खानापुर में तेज रफ्तारी से एक नौजवान डॉक्टर हलाक और दूसरे जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि ये वाकया उस वक्त पेश आया जब उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। महलूक शख्स की शिनाख्त बाचूपल्ली के रहने वाले डॉक्टर जसवंत के तौर पर हुई है और जख्मी की शिनाख्त LB नगर के रहने वाले डॉक्टर भूमिका के तौर पर हुई है। दोनों LB नगर के कामिनी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर बताए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक ये दोनों जनवाड़ा में एक तकरीब में शिरकत के बाद हैदराबाद वापस आ रहे थे। खानापुर पहुंचने पर जसवंत, जो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी पर काबू खो बैठा और ट्रक से टकरा गया। उसे शदीद चोटें आई और मौके पर ही दम तोड़ गया। भूमिका, जो कि शदीद तौर पर जख्मी हुई थी, उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। नारसिंगी पुलिस तहकीकात कर रही है। राजधानी दिल्ली के बाहरी शुमाली जिले में पुलिस और बदमाशों के दरमियान हफ्ते की सुबह जबरदस्त तसादुम हुआ। इस दौरान फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाशों की मौत वाक़ई हो गई। बताया जाता है कि ये बदमाश इलाके में डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। पुलिस और बदमाशों के दरमियान अचानक हुई फायरिंग के वाक़े से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। इत्तलात के मुताबिक कई बदमाश इलाके में डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। इस दरमियान पुलिस को इसकी इत्तला मिली और टीम ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए कई राउंड गोलियां चलाई। इस फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लग गई और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उसके बाद बदमाशों को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। वहीं दिल्ली के नरेला इलाके में हुई तसादुम के दौरान पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तसादुम नरेला इंडस्ट्रियल थाने इलाके के खेड़ा गांव के पास हुआ। पकड़े गए बदमाश लंबे वक्त से इंडस्ट्रियल इलाके के गोदामों को निशाना बना रहे थे और चोरी व लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। मुल्क के मुतवस्सित तबके को एक बड़ी राहत देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि नए टैक्स निज़ाम के तहत 12 लाख रुपए तक की आम सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया जाएगा और नए टैक्स स्लैब मुतारिफ कराए गए हैं। मजीद ये कि 75,000 रुपए की मयारी कटौती के साथ यानी 12.75 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले टैक्स दहिंदगान को सिर्फ 0 टैक्स अदा करना होगा। वजीर खजाना ने यह भी कहा है कि हुकूमत अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। वजीर खजाना ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि नए इनकम टैक्स कोड का ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा।
वज़ीर खजाना ने ये भी ऐलान किया कि इंश्योरेंस के शोबे के लिए FDI की हद को 100% तक बढ़ाया जाएगा और इंश्योरेंस के शोबे के लिए बढ़ी हुई हद इन लोगों पर लागू होगी जो पूरे प्रीमियम की मुल्क में सरमायाकारी करते हैं। बजट 2025 में मोदी हुकूमत ने मुल्क के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत दी है। हुकूमत ने किसान क्रेडिट कार्ड की हद बढ़ा दी है। अब ये हद 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। हुकूमत ने बजट में किसानों के हवाले से कई और बड़े ऐलानात भी किए हैं। उनमें धन धनिया ज़रई स्कीम, ज़रई प्रोग्राम के जरिए 1.7 करोड़ किसानों की मदद, कम पैदावार वाले 100 अजला का अहाता करने वाली ज़रई स्कीम शामिल है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि खुर्दनी तेल और बीजों के कौमी मिशन का मकसद इस शोबे में खुद कफालत लाना है। इसके तहत हम दालों में खुद कफील बनने का 6 साला मिशन शुरू करेंगे। मरकजी एजेंसियां अगले 4 सालों में तुअर उड़द दाल खरीदेंगी। प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बेहतर बनाने के लिए बिहार में मकाना बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। बजट में हुकूमत ने कहा है कि ज़रई ज़िले के प्रोग्रामों को ख्वाहिशमंद ज़िले प्रोग्रामों की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। फसलों में तनव्वु, आबपाशी की सहूलियात, कर्जों की दस्तियाबी से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। ये स्कीम फसलों के तनव्वु को अपनाएगी, कटाई के बाद ज़ख़ीरे में इजाफा करेगी। इससे 1.7 करोड़ किसानों की मदद होगी। यूनियन बजट 2025 पर कांग्रेस के सीनियर कायद जयराम रमेश ने शदीद तनकीद की है और कहा कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है। उनका कहना है कि बजट से कोई बड़ी तब्दीली या राहत मुतवक्को नहीं है और हुकूमत सिर्फ एदाद और शुमार के जरिए अवाम को खुश करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका हकीकी असर अवाम पर नहीं पड़ेगा। जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया कि बजट में अवामी ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया गया है और सिर्फ दिखावे की ऐलानात किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बजट के तहत पेश की जाने वाली पॉलिसियों से मुल्क की मईशत में हकीकी तरक्की का इम्कान नहीं है और आवाम को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए ठोस और मौसर पॉलिसियों की जरूरत है जिनसे आवाम को बराह रास्त फायदा होगा। वाज़ेह रहे कि इस बजट में टैक्स पॉलिसी और GST के हवाले से भी बात की जा रही है। माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत को टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि कारोबारी अफराद और सनअतकारों को मजीद राहत मिल सके। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।